there is a setting that you can turn off host management, which means that anyone can start recording and anyone can kick out anyone. So this setting I have done or someone No, else? the host has done. Okay, the host has done. Thank you, Abdul Samad, for making the required setting. Okay, so yesterday we have started with recording and presentation. Okay, so yesterday we had started this particular chapter, that is network layer, and I have shown you this syllabus also, that what we are going to learn and what we are going to do in this particular chapter. Okay, so first of all we have started this chapter with the introduction part. Okay, that your network layer is responsible for the host to host delivery from your source computer to the destination computer. It is responsible to deliver the packets, or it is responsible for delivery of datagram or frame or packet, whatever you say. Okay, so the responsibility is from the host to host. Okay, that is from sender to the receiver. But what we have seen in the previous one, that is in the um क्या था उसका डेटा लिंक लेयर. In the case of data link layer, it was responsible for the delivery of packet from one hop to the next hop. Okay, मतलब एक स्टेप के लिए रिस्पॉन्सिबल था. अब ये पूरे रास्ते के लिए, पूरे जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका नेटवर्क लेयर. ओके, and one more thing which has been introduced in this particular layer is the IP address. Okay, so with the help of IP addresses, we can easily reach to the destination. We can easily reach the destination, and we can hand over the packets to the correct destination. Okay, so we'll see a lot of thing in this particular layer. Okay, IP address was not introduced till the data link layer. Only MAC address, or we can say machine address, was there. Okay, or we can say hardware address was present in the last layer, that is in the data link layer. But in the network layer now we are having the IP address also, and with the help of IP address we can easily locate any machine, any host in the network. ठीक है, हम किसी का भी जल्दी से पता कर सकते हैं. ओके, ये तो फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक मोबाइल, एक लैंडलाइन नंबर बोलूँ. आपको मैंने एक लैंडलाइन नंबर बोला, 022 255 06 7 4 7, ऐसा फॉर एग्जांपल नंबर बोला. तो यू विल इजीली, आप इजीली इसको ट्रैक कर सकते हो कि 022 मतलब मुंबई का है. ओके, तो कैसे कैसे हम लोगों ने फॉरन ट्रैक किए. तो जैसा आपका ये लैंडलाइन नंबर है इजीली ट्रैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द एसटीडी कोड, वैसे ही आपका आईपी एड्रेस भी ट्रैक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द होस्ट एड्रेस एंड द नेटवर्क एड्रेस. ओके, which is because your IP address consists of the network address and the host address. Okay, पहले वो नेटवर्क तक पहुंचेगा, उसके बाद में होस्ट तक पहुंचेगा. ओके, तो हम लोग ने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था. काम करेंगे पता नहीं. It provides services to the transport layer and so receives services from the data link layer. It changes according to the perspective, because if we are at the center side, then obviously we are taking the services from the upper layer, that is from the transport layer, and providing the services to the data link layer. But if we are at the receiver side, then obviously we are taking the services from the data link layer and we are providing the services to the ट्रांसपोर्ट लेयर. सो उसका रिवर्स हो जाएगा अगर आप रिसीवर साइड में हो तो. ठीक है, here we will go through the services. Okay, whatever your network layer is provided, okay, is providing. And these services are packetizing. I think we have started the first one, that is packetizing. That is nothing but the encapsulation and the decapsulation, which is done at the sender and the receiver side respectively. Okay, सो दीज आर दी सर्विसेज. फर्स्ट विल थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा और हमारा कंटिन्यूएशन भी हो जाएगा. ठीक है, so the very first service was packetizing, just a kind of packing a parcel. Okay, you want to send to your friend. Okay, you have some parcel, you have something. Okay, you have something gift. Okay, तो आपके पास में कुछ गिफ्ट है, आपने इसको क्या करना है, इसको आपको उसको पैक करना है. ठीक है, सो पैकेटाइजिंग इज नथिंग बट अच्छे से कवर लगा के और उसको प्लास्टिक में पैक करके प्रॉपरली सेलो टेप लगा के, फिर आपका हो गया पैकेटाइजिंग. पैकेटाइजिंग कंप्लीट नहीं हुआ, उसके ऊपर अभी हेडर लगाना बाकी है, मतलब एड्रेस लगाना बाकी है. अदरवाइज ये पैकेट आपका कहाँ जाएगा. ओके,
नो वन नोज दैट के विच डेस्टिनेशन पे ये जाएगा, कौन से डेस्टिनेशन पे जाएगा, ठीक है। So it is mandatory that if you are wrapping it up with a paper and some kind of plastic something, so you must put a header, you must put some kind of address on that particular box or cartoon so that it will reach to the proper destination. तो पैकेटाइजिंग कुछ ऐसे ही होता है, यहाँ पर भी हमारा इनकैप्सुलेशन होता है। द टर्म विच इज गिवन इज इनकैप्सुलेशन विच इज डन एट द सेंटर साइड, बिकॉज सेंटर साइड पे सेंटर ने इसको पैक करेगा, रैप अप करेगा, अच्छे से हाइड्रोजन लगाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका इनकैप्सुलेशन विच इज डन एट द सेंटर साइड, ओके। and the reverse procedure is done at the receiver side, which is called as the decapsulation, okay. What is decapsulation? Basically जो wrap up किया था, जो पैकिंग किया था, उसको निकालना, उसको खोलेगा और उसमें से एक्चुअल बॉक्स, उसमें से एक्चुअल गिफ्ट, उसमें से एक्चुअल पार्सल और पैकेट जो भी है वो निकालेगा, दैट इज डीकैप्सुलेशन, ओके। और फिर आगे पास करेगा, ठीक है। So packetizing, then routing, then forwarding, then error control, then flow control, congestion control, quality of service and security, okay. So these are the services which is provided by the network layer, okay. So in this particular session we will try to cover all these services, okay। मतलब एक स्लाइड की खाली, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, जस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर लिखने तक के लिए मतलब उतनी डिटेल हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। Yesterday we have seen this packetizing. I think first slide we have already seen. In this we have seen that we have encapsulation and decapsulation, okay. So I think you can remember this one, that is encapsulation and decapsulation. You know, one more term I have highlighted and underlined over here, that is without changing or using the content, okay. Whatever content and whatever parcel we are sending to the sender or to the receiver, okay, so that should not change, okay, that should not change, or someone else cannot change the, should not change the content of the parcel or packet or datagram, whatever we can say, ठीक है। इसके इसके अलावा पैकेटाइजिंग की और एक स्लाइड है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इफ यू हैव सम डेटा, ओके, if you have some data which is which is bigger, okay, which is big in size, okay, then what we have to do, we cannot send that particular data as it is as you also know that we cannot send, आपके पास में अगर 700 MB की अगर एक वीडियो फाइल है, एक अगर मूवी है, you cannot send that particular file as it is, okay, it will look like कि आप सेंडिंग कर रहे हो तो आपके एक ही झटके में जा रही है, ठीक है। आपने किसी को सेंड किया या फिर जैसे भी आपने इसको सेंड किया वाईफाई के थ्रू, वैसा जो भी है, तो वो जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक ही टर्न में जा रहा है, बट सिस्टम क्या कर रहा है, पीछे आपका जो सिस्टम है वो कर क्या रहा है, नाउ that particular big file will be converted or will be converted into the fragments, okay. Those small parts are called as fragments, okay, and those fragments are sent to the receiver, okay। और रिसीवर के पास में जाने के बाद में सारे फ्रेगमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, वापस से क्लब हो जाएंगे, ठीक है। उसको सीरियल वाइज उसको हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस, उसको नंबरिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे, और रिसीवर साइड पे उसको हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। And after receiving all those fragments, we will combine it and will make a file and then we'll forward it to the next layer, okay। So packetizing में ये भी important है कि if you have a big file, then you must transmit, you must send it after fragmenting it, after doing a fragmentation, okay। The source is not allowed to change the content of the payload unless it is too large for delivery and, देखो हम लोगों ने पैकेट को, डेटा को हाथ कब तक नहीं लगाया, जब तक कि वो फाइल बिग इनफ ना हो, ओके। अगर बहुत बड़ी है तो आप क्या करो, उसको फ्रेगमेंट कर लो, तभी आप हाथ लगाओ, वरना एज इट इज भेज दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। द डेस्टिनेशन होस्ट रिसीव द पैकेट फ्रॉम इट्स डेटा लिंक लेयर, ऑब्वियसली आप अगर आप रिसीवर साइड पर हो, सो यू आर गोइंग टू रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द लोअर लेयर, ठीक है। आप रिसीवर साइड पर हो तो यू आर गोइंग टू रिसीव द सर्विसेज फ्रॉम द लोअर लेयर, ओके। नीचे से आप सर्विसेज लोगे और ऊपर सर्विस प्रोवाइड करोगे। अगर आप सेंडर साइड पर हो तो क्या होगा, सेंडर साइड पे आपको सर्विस ऊपर से मिलेंगी, आप सर्विस नीचे दोगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पैकेटाइजिंग में वही होता है, इफ द पैकेट इज फ्रेगमेंटेड एट द सोर्स और एट द राउटर अलोंग द पाथ, द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेटिंग अंटिल ऑल फ्रेगमेंट्स अराइव। ऐसे नहीं कि एक फ्रेगमेंट आया आपकी, फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई बड़ी फाइल थी, आपने इसको 5 फ्रेगमेंट्स की, ठीक है। तो एक फ्रेगमेंट आपका रिसीवर पे पहुंचा, अब ज़रूरी नहीं कि आपके सारे के सारे फ्रेगमेंट्स एक ही टाइम पे रिसीवर को मिल जाए,
दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो मे बी ये हो सकता है कि द फ्रेगमेंट नंबर 1 विल रीच at destination first, okay, then fragment number 4, then fragment number 3, then fragment number 5, then fragment number 2, like that, okay. So this is the responsibility of the network layer to wait for all the fragments, जितना भी fragmentation किए थे उनका वो fragments का wait करे, उन सारे fragment को reassemble करे, क्या करे उनको reassemble करे, and then उसको deliver करे अपने upper layer को, because we are at the receiver side, okay. We always take the services, or we always take the data from the lower layer and we pass it to the upper layer, pass it on, pass it on, pass it on, ठीक है। तो इफ द पैकेट इज फ्रेगमेंटेड, अगर फ्रेगमेंटेड है तो आपको सब सारे पैकेट का वेट करना है, ऐसे नहीं कि हमारा काम हो गया अब जाए जनता, नहीं, ऐसा हम लोग को नहीं करना है, बल्कि आपको सारे फ्रेगमेंटेड पार्ट्स का वेट करना है until all the fragments arrive at the receiver, and then your network layer की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सारे फ्रेगमेंट्स को असेंबल करे, रीअसेंबल करे, एंड देन उसके बाद में उसको ऊपर फॉरवर्ड करे, ओके। तो पैकेटाइजिंग में यही सब होता है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो पैकेटाइजिंग, पैकेट है, पैकेट को अच्छे से रैप अप करना, ये आपका गिफ्ट है, आपने इसको बॉक्स में रखा, ऊपर अच्छे से एक थोड़ा सा कलरफुल पेपर्स लगाए, और फिर उसके ऊपर एक अच्छा सा बोल के एज अ गिफ्ट बोल के आपने अपने अपने फ्रेंड का डेस्टिनेशन, उसका एड्रेस वगैरह डाल दिया। ये हो गया पैकेटाइजिंग, विच इज डन एट द सेंटर साइड। और जो सेंटर साइड पे पैकेटाइजिंग होती है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, अरे बोलो क्या बोलते हैं? The process at the center side is called as encapsulation. Good. And the term which we use for at the receiver side is called as decapsulation. Okay, obviously encapsulation and decapsulation. So you need to remember these two terms. Okay. And you can remember one more thing, that if the packet is too large, okay, if it is big enough, then you must break it into the fragments, okay। जो भी जितने भी required fragments है आप उसके अंदर उसको break करेंगे और divide करेंगे, and then you will send it to the receiver, and then your network layer is responsible to wait for all the fragments to reach at the destination, and then it will reassemble it, and then it will forward to the upper layer। Done। ये था हमारा पैकेटाइजिंग पार्ट। आई होप क्लियर है, समझ में आया होगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट सर्विस जो कि हमारा नेटवर्क लेयर हमको प्रोवाइड कर रहा है, वो है राउटिंग, ओके। तो राउटिंग इज अ वेरी सिंपल वन, ओके। जैसे मैंने आपको बताया था, यू आर इन पनवेल एंड ओके यू वांट टू ट्रैवल to VT, okay, then you have various and you have multiple path and you have multiple ways to go for CST, okay, to CST। आपके पास में ट्रेन का रास्ता है, आप अगर अपने कॉलेज में हो और आपको VT हेड ऑफिस जाना है, आई एम जस्ट टेकिंग अ कॉमन एग्जांपल सो दैट ऑल विल अंडरस्टैंड। सो आपको वहाँ से आपको वहाँ से एक रिक्शा करना पड़ेगा, रिक्शे से आप स्टेशन जाओगे, फिर वहाँ से टिकट निकाल के आप VT पहुँचोगे, VT से सामने ही आपका जो हेड ऑफिस है, ठीक है, अपने अंजुमन का। तो ये एक हमारे पास में रास्ता है। आपके पास में टू व्हीलर है, डायरेक्टली स्टार्ट करो, वहाँ सीधा निकलो, आ जाओ, ठीक है, बट इसके अंदर इसके पैरामीटर्स अलग है। अगर आपके पास में कार है, फोर व्हीलर है, देन यू कैन ट्रैवल बाय दी फोर व्हीलर ऑल्सो, बट इसके पैरामीटर अलग है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में बस का भी ऑप्शन है, सो यू कैन ट्रैवल बाय बस ऑल्सो, वो भी मिलेंगे, लेकिन इसके पैरामीटर, इसके इम्पैक्ट कुछ और रहेंगे, ठीक है। आपके पास में एक और ऑप्शन है जिसको आप लोग बोल सकते हैं, आप ओला बुक करो, ओला से आप चले जाओ, फोर व्हीलर तो एक ही चीज़ है, ठीक है। आपके पास में ओला अगर एयर है तो आप हेलीकॉप्टर बुलवाओ, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, ये भी आपके पास में ऑप्शन है, बट दैट इसके पैरामीटर्स अलग है, ठीक है। और कल मैंने आपको कल क्या चीज़ बताया था कि whichever path and whichever route you are selecting from source to the destination, that must be सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ रास्ता, ठीक है। तो दैट रूट मस्ट बी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एंड इन शॉर्ट इन सब का जो कॉम्बिनेशन हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम सोल्यूशन और ऑप्टिमम पाथ, ठीक है। तो ऑप्टिमम रूट हमको चाहिए, या इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं ऑप्टिमल रूट या ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल पाथ हमको चाहिए, सो दैट यूर पैकेट विल रीच टू द डेस्टिनेशन, फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन इन कम से कम टाइम में, ठीक है। जो मैंने आपको बोला बस वही है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ठीक है। रास्ता अच्छा भी हो, का कंजेशन भी ना होना, मालूम पड़ा आपने
सस्ते के चक्कर में गए और मालूम पड़ा वहाँ पे कंजेशन हो रखा है, ठीक है, और आपके पैकेट फिर लॉस होना शुरू हुए और आप बेचारे खर्चे में आ गए, ठीक है। तो वैसा तो नहीं है करना हम लोग को। ऐसा भी नहीं करना है कि चलो भाई बहुत है हमारे पास में, यहाँ से पहले बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे जाके फ्लाइट लेंगे, फ्लाइट लेके पहले सहारा, सहारा से फिर इधर, ऐसा ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक हम लोग ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट करेंगे, ऑप्टिमल पाथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली वो एयर का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। So routing basically, we have lot of algorithm. We have few, we have few algorithm, and the name of algorithm I have already conveyed you. That is the distance vector routing and the link state routing, or we can you can call it as a routing also. Not a big deal, but commonly उसको routing ही बोला जाता है, ठीक है। So, for distance vector routing and the link state routing are the two algorithms which tells you, which explain you, and which let you know that के which path is optimal. Okay, कौन सा पाथ भाई ऑप्टिमल है, आपने इसको एक बार नेटवर्क में छोड़ दिए, ठीक है, आपने इसको एक बार नेटवर्क में छोड़ दिया, वो नेटवर्क में जाके काम करेगा और सर्च करेगा कि ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने में कौन सा पाथ अच्छा है, ठीक है, फिर आपको फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एंड द लिंक स्टेट राउटिंग आर द टू एल्गोरिथम्स व्हिच लेट यू नो दैट कि which path is correct, which path is best, which path is sasta, and which is sundar and which is टिकाऊ, okay। So your routing algorithm will let you know each and everything about the path, okay, which path you must select for the traveling purpose, okay। So this is called routing, okay, from source to the destination, which path you are going to select, that is from source to the destination, ओके आपके रूट को सेलेक्ट करने की जो जिम्मेदारी बनती है वो राउटिंग की सर्विस की बनती है, और ये सर्विस हमारी प्रोवाइड करता है हमारा नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो नेटवर्क लेयर हमको ये सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो फिजिकल नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क लैन्स एंड वैन्स एंड राउटर्स एंड छोड़ो इसको छोड़ो, हाँ ओके। तो जब हम लोग को ये पता है कि हमारा जो नेटवर्क है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लैन मैन वैन, सब कुछ इसके अंदर पूरा घुसड़ मुसड़ है, ठीक है। यू नो यू कैन सी लॉट ऑफ लैंड्स व्हिच आर कनेक्टेड टू मल्टीपल लैंड्स एंड which is collectively you can call it as a man, and one man can also connect with another man, and two mans collectively can also be called as the van, and one van is also connected to the another van। मतलब पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा पूरा ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है। इतने बड़े नेटवर्क के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे पाथ रहेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर यहाँ से मैंने गूगल टाइप कर किया, ठीक है, मैंने मैंने अपने ब्राउज़र के अंदर www.google.com मैंने एंटर किया, ठीक है। तो जैसे ही एंटर करूँगा तो ये गूगल के सर्वर को पहले कनेक्ट करेगा। अब कनेक्ट करने के लिए मेरे पास उसके बाद बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले तो मेरे वाईफाई राउटर को जाएगा, वाईफाई राउटर से मेरे आईएसपी का जो राउटर जहाँ से मुझे सर्विस मिल रही है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से फिर जो नियरेस्ट उसको पाथ रहेगा वो सेलेक्ट करेगा, चूज़ करेगा, उसमें से जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि हर राउटर, नेटवर्क के हर राउटर में एक टेबल मेंटेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग टेबल, ठीक है। तो इट टेक्स द हेल्प ऑफ दैट राउटिंग टेबल एंड विल लेट यू नो कि भाई वो कौन सा पाथ सबसे शॉर्ट है, कौन सा सबसे सस्ता है, ठीक है। इसी यही रीजन है कि आपका यही रीजन है कि आपका जो routing table is maintained at each and every router, so that we will come to know that when if any packet arrives at the router, if any packet arrives at the router, then router will let it know that भाई के तुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके लिए तुझे ये पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि भाई देखिए वाला पाथ, और बराबर उस पैकेट को वो पाथ पे वो डाल देगा, फिर वो पैकेट आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसके लिए बोलते हैं ना, आपका राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है। राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है, रूटिंग करता है, आपको रूट बताता है, पाथ बताता है, रास्ता बताता है, ओके। सो जब हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं, इट मीन दैट के दैट मोर देन वन रूट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन वी हैव, ओके। सो वी हैव मल्टीपल रूट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राउटिंग एल्गोरिथम, जो कि एक सर्विस है हमारे नेटवर्क लेयर की, ओके। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का पूरा रास्ता सही सही बताएं, ओके। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग द बेस्ट वन अमंग दीज पॉसिबल, okay, we have multiple A B C D E, okay, so we have all these routes, okay, so out of these route
which one is the best one. As I told you that के optimal route, okay, या optimal path, optimal solution, optimal route, okay, you can call it many. आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोग को, इसमें कुछ ज़्यादा इसके पे कुछ कॉम वो नहीं है. The last one, the network layer needs to have some specific strategies for defining the best route using routing protocol. Okay. अच्छा, अब सबसे अच्छा कौन सा है, सस्ता, सुंदर, टेकाऊ, ये सारे पैरामीटर किस में आते हैं, कौन डिसाइड करेगा? तो उसके लिए भैया हमारे पास में कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, also called as routing algorithm. Okay, as I told you, the first one is the distance vector routing and the second one is link state routing. Okay, so this is all about the routing, the second service provided by the network layer. Okay, the first was packetizing, the second is routing. Okay, coming to the third one, that is forwarding. Now you need to understand the difference between the routing and the forwarding. Okay, can anyone tell me what should be the difference between forwarding and routing? कोई बता सकता है? फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास में. अगर कोई बता सकता है तो अनम्यूट करो, बोलो फटाफट. बोलो, हमारा मैसेज बॉक्स से लोड हो रहा है, हम लोग ये करते हैं. Okay, coming to the third service, that is routing. Okay, you need to understand this thing clearly. हालांकि this is also a part of, this is also a service of network layer only, so कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. Okay, so this is your host, sorry, this is your sender and this is your receiver. Okay, as I told you that we have multiple path from source to the destination. Okay, तो आपका आपका एक ये वाला रास्ता है. ओके, मैं जस्ट खाली आपको बता रहा हूँ, बीच में मैं नोड्स और राउटर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है. आपके पास में ये वाला रूट है और आपके पास में ये वाला रूट है, ठीक है. तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सॉरी, रूट ए, रूट बी, रूट सी. ओके, so you have three routes. Okay, from source to the destination, from source to the destination you are having three different routes. Okay, अभी अलग अलग रूट्स है, इनके अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं. हो सकता है कि रूट 1 से अगर आप जाएंगे तो आपको कम टाइम लगता हो, रूट 2 से जाएंगे तो आपको उससे भी कम टाइम लगता हो, और रूट 3 से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, ठीक है. तो ये भी इसके पैरामीटर्स है, ये भी उसके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ इसके राउटर है, ठीक है, यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे राउटर है, यहाँ पे राउटर है, ठीक है, यहाँ पे राउटर है. मैं थोड़ा बीच में वो कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए. ये आपके राउटर्स है, ठीक है. सो ऑल दीज राउटर्स आर सिचुएटेड इन द नेटवर्क. ओके, तो ये आपका रूट 1, ये आपका रूट 2, ये आपका रूट 1 है, ये रूट 2 है और ये रूट 3 है. ओके, सो इन सारे रूटों के अंदर अब ये तो हमको समझ में आ गया, हमारा जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स है दे विल लेट अस नो दैट के विच पाथ एंड विच रूट इज द बेस्ट वन. ओके, सो हमारे राउटिंग एल्गोरिथम जो हमने अप्लाई किया, सो दे टोल्ड अस टू सेलेक्ट द रूट नंबर 2. ओके, तो उसने हम लोग को R2 बोला है, ठीक है, कि भाई R2 सेलेक्ट करो, विच इज द वेरी सस्ता, सुंदर एंड टेकआउट रास्ता. ओके, फॉर रीचिंग और फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. ओके, गॉट इट. तो ये हुआ आपका राउटिंग, ठीक है. अब आते हैं फॉरवर्डिंग पे. फॉरवर्डिंग इज मेनली फोकसेस ऑन यू नो स्टेप बाय स्टेप जो बोलते हैं ना हम लोग, वो उसके ऊपर फोकस करता है. यानी कि ईच एंड एवरी राउटर विल मेक अ डिसीजन अबाउट द पैकेट और एनी फ्रेम कि भाई इसको अभी कहाँ जाना चाहिए, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैकेट जो है ना, यहाँ से समझ लो आ रहा है, ठीक है. जो मेरे कर्सर पे फोकस करो तो आपका पैकेट यहाँ से आ रहा है. चलो, ये वाला रूट तो हमने सेलेक्ट की है, हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल के बोलने पर वी हैव सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर रूट, दैट इज R2. ओके, आफ्टर सेलेक्टिंग दिस रूट आपका पैकेट यहाँ से ट्रैवल किया यहाँ से पहुंचा. अब जब ये राउटर के पास में पहुंचा, तो ये राउटर के पास में हमारे पास में 2-3 ऑप्शन है, ठीक है. चलो, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है यहाँ पर. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इससे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इससे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ से भी रास्ता हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर फॉरवर्डिंग मतलब ये कि फॉरवर्डिंग कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन अप्लाइड बाय ईच राउटर
अब ये राउटर को क्या करना है, ये राउटर को डिसीजन लेना है कि मेरा जो पैकेट है वो ये वाले रास्ते पे जाए, या ये वाले रास्ते पे जाए, या ये वाले रास्ते पे जाए, ठीक है। सो forwarding deals with it is related, or it is connected with each and every router, okay, means each and every router has to take the decision about the packet forwarding, ठीक है। तो forwarding क्या होता है, आपका राउटर करता है, forwarding is done by each and every router, okay, that आगे कहाँ भेजना है, आगे कैसे भेजना है, ठीक है। तो ये जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, पैकेट यहाँ पहुंचा आपका ये राउटर के पास में, and after reaching at this particular router, this router will take a decision based on the routing table, it will take the decision कि भाई उसको ये वाला रास्ता लेना चाहिए, कि ये वाला रास्ता लेना चाहिए, कि ये वाला रास्ता लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को, ओके। तो राउटिंग इज द डिफरेंट थिंग, डिफरेंट तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन जो बेस है वो फॉरवर्डिंग है, ठीक है, जो बेस है वो फॉरवर्डिंग है, और फॉरवर्डिंग बन के आपका पूरा राउटिंग बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये राउटर, तो ये राउटर के पास में कितने ऑप्शन थे, सो ये जो हमारा राउटर था, चलो अभी मैं बाद में वो करूंगा, अभी मैं इसको कनेक्ट करने में और वो हो जाएगा, ओके। सो फॉरवर्डिंग यहाँ पर भी था, ठीक है, ये आपका राउटर 1 था, तो इस राउटर ने भी डिसीजन लिया कि आपका जो पैकेट है वो यहाँ जाना चाहिए, कि यहाँ जाना चाहिए, कि यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो उसने डिसीजन लिया कि नहीं यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, चलो हो गया डिसीजन। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पर भी था कनेक्शन, 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 ठीक है। तो अब इस राउटर के पास में कितने सारे वे हो गए, एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ता, चार रास्ता, पांच रास्ता, ठीक है। हाउ मेनी पाथ एंड हाउ मेनी रूट इट हैज डिटेक्टेड, 5 रूट्स, 5 ऑप्शंस आर देयर, ओके। सो इसको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सो ये है फॉरवर्डिंग, ओके। सो दिस पर्टिकुलर राउटर हैज टू टेक द डिसीजन, जस्ट प्लीज मार्क माय वर्ड, दिस पर्टिकुलर राउटर हैज टू, जो जहाँ मेरा कर्सर है, तो दिस पर्टिकुलर राउटर हैज टू टेक द डिसीजन that the packet whatever it has received will be forwarded to ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, के ये वाला ऑप्शन, ठीक है। so we have total 5 option, and out of these 5 option which is the best one, okay, because your router is connected because आपके पड़ोस में कौन रहता है, मतलब आपके पड़ोस में आपका पड़ोसी रहता है, आपके जो नेबर्स है वो आपके नेबर, अच्छा आपके नेबर के जो नेक्स्ट में है, उसके बाद में है, उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके नेबर्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। तो आप इजीली बता पाओगे कि हाँ यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ से नहीं जा सकते हो, या उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इन द सेम वे ये वाला जो मेरा राउटर है, जो मेरा जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाले राउटर को पता रहेगा कि उसके आस पड़ोस में कौन है, उसके आस पड़ोस में ये 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 है और ये है, ठीक है। इतने सारे पाथ में से आपका राउटर एक डिसीजन लेगा एंड विल फॉरवर्ड द पैकेट टू दैट पर्टिकुलर रूट, ओके। तो चलो डिसाइड किया उसने कि भाई ये वाला रूट अच्छा है, ठीक है, सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ये वाला रास्ता है। फिर आपका पैकेट चलना शुरू हुआ, ठीक है। सी एट ईच एंड एवरी राउटर दिस पर्टिकुलर एक्शन इज बीइंग डन, ओके। ये एक्शन हर राउटर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मतलब हर राउटर ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा एक्शन, फॉरवर्डिंग वाला एक्शन, ओके। राउटर क्या करता है, पैकेट लेगा, लेने के बाद में क्या करेगा, चेक करेगा, अपना राउटिंग टेबल देखेगा, ओके आपको यहाँ जाना है, उसके लिए आप ये वाला नहीं, आप ये वाला रास्ता लो, ठीक है, और उसको वाले पाथ पे डाल देगा, वाले पोर्ट पे डाल देगा, ठीक है, और फिर आपका पैकेट आगे जाएगा। फिर जब नेक्स्ट राउटर के पास पहुंचेगा तो नेक्स्ट राउटर भी वैसे ही करेगा, एंड इट विल टेक द डिसीजन एंड विल फॉरवर्ड द पैकेट टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। इसलिए इसका नाम ही आपका फॉरवर्डिंग है, ठीक है। तो फॉरवर्डिंग इज द टर्म which is closely related with each and every router, that your router has to take the decision for each and every packet कि इस पर्टिकुलर पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड करना है, ओके। तो ये चीज हम लोग करेंगे फॉरवर्डिंग में, ठीक है। व्हेन अ राउटर रिसीव्स अ पैकेट, मैंने अब जो मैं जितना बोल रहा हूँ ना वो सब मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, इसके लिए मैं इसको मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। तो सी
The decision making table for router normally uses for the applying this action if is someone called the forwarding table or sometimes called as the routing table. ठीक है, तो ये हेल्प किसकी लेगा, ये हेल्प राउटिंग टेबल और फॉरवर्डिंग टेबल की लेगा. ठीक है, तो बेसिकली उसमें देख के बताएगा ना कि कहाँ जाना है इसको आगे. तो जो आपका डिसीजन होगा, जो राउटर जो डिसीजन लेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द राउटिंग टेबल. ओके, वन मोर थिंग, when a router receives a packet from one of its attached network. ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर पैकेट, इस पर्टिकुलर राउटर को यहाँ से पैकेट मिला. सी, जब मैंने, मेरा फोकस करो जहाँ पर मैं, मेरा कर्सर है, मैं डायग्राम में शो कर रहा हूँ आपको. तो इस पर्टिकुलर राउटर को पैकेट यहाँ से रिसीव हुआ. जब रिसीव हुआ तो क्या करना है, उसको फॉरवर्ड करना है, आगे कहीं ना कहीं फॉरवर्ड करना है, या तो यहाँ फॉरवर्ड करना है, या तो यहाँ फॉरवर्ड करना है, या तो यहाँ फॉरवर्ड. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फॉरवर्डिंग. बस. To make this decision, the router uses a piece of information in the packet header, destination address और a label. ठीक है, obviously उसका तो एड्रेस चेक करना पड़ेगा ना उसको, तभी तो वो मतलब बता पाएगा आपको कि भाई इसको कहाँ जाना है. ठीक है, उसमें चेक करेंगे सोर्स कहाँ से आया भाई, अच्छा इधर से आया है, कहाँ जाने का है, अच्छा यहाँ पे जाने का है, अच्छा यहाँ पे जाने के लिए हमारे पास में ये अच्छा ये वाला तुम रास्ते से जाओ, ये वाला रास्ता अच्छा है. तो ऐसा राउटर उसको बता देगा. ओके, समझ में आया सबको यहाँ तक, व्हाट इज फॉरवर्डिंग एंड व्हाट इज राउटिंग? समवन लेट मी नो. Yes, sir. Okay, thank you. Hope you are understanding this one also, because these are very simple topics and simple services. First was packetizing, second was routing, and third is the forwarding. Okay, coming to the next one, we hope we'll cover all this, because these things we have already done it in the previous layer. In the data link layer chapter mein we have done this, that is the error control and flow control. So we won't take much time for completion of this particular one. We have new one, that is congestion control. Okay, we'll focus on it. And then we have quality of service, that's a very common one. So coming to the error control first. Okay, as you know that error are very crucial and very disturbing thing. Okay, and it is our responsibility to filter the packets, and we have to make sure that the packet is error free. Okay, and your packet should go to the next level without error. Okay, if it contains an error, then that error can generate another error. Okay, so this is our responsibility, to remove that error, or to avoid any kind of error. Okay, और टू पर्कुलेट एनी काइंड ऑफ एरर. ओके, हमको किसी भी एरर को आगे भेजना नहीं है. जिस चीज को अगर हम लोग पर्कुलेट करेंगे, वो चीज और पर्कुलेट होती जाएंगी, वो चीज और जनरेट होती जाएगी. एज आई टोल्ड यू, बग्स फॉलो बग्स ऑलवेज. ओके, तो हमेशा बग्स को फॉलो करते हैं, एरर दूसरे एरर को जनरेट करता है. तो इसीलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वॉट एवर पैकेट विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन शुड बी एरर फ्री. ओके, although error control also can be implemented in the network layer, from which we can easily come to know that this particular packet contains an error and this particular packet does not contain an error. Okay, तो जो भी आपको implement करना करो, लेकिन error control हमको चाहिए. Okay, जो भी मतलब जो भी strategy, जैसे for example आपने लगा दिया, आपने CRC लगा दिया, आपने checksum लगा दिया, आपने hemming code लगा दिया, आपको जो लगाना लगाओ, but we don't care, but we want our data to be error free. That's all. Okay, तो अलग अलग लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन देम. द डिजाइनर ऑफ द नेटवर्क लेयर इन द इंटरनेट इग्नोर दिस इशू. छोड़ो इसको. ओपन वन रीजन फॉर द रीजन टू फैक्ट. चलो तो बस समझ में है आपको. एरर कंट्रोल तो आपको पता है. एरर कंट्रोल ये है कि आपको एरर को कंट्रोल करना है. कहाँ कंट्रोल करना है? हर एक लेवल पे कंट्रोल करना है. एज यू नो दैट डेटा लिंक लेयर पे भी हम लोगों ने एरर को कंट्रोल की. ओके, एंड वी मेक श्योर दैट कि एरर पर्कुलेट ना हो, एरर आपका और स्प्रेड ना हो. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हर पैकेट के साथ में एक CRC, हर पैकेट के साथ में एक कोड लगा के, एक स्ट्रैटेजी, एक मैकेनिज्म लगा के भेजते हैं. ठीक है, ताकि अगर कभी इसके अंदर कुछ एरर होगा, फॉर एग्जांपल दैट पैकेट इज नॉट ट्रू, इफ द पैकेट इज नॉट ओके, देन दैट पैकेट विल बी डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर. सिंपली अगर आपने एरर कंट्रोल मैकेनिज्म लगाए होंगे तो. If you have not implemented any kind of error control mechanism, then what will happen? Your receiver will discard the packet, will check the error. If it found that this particular packet contains an error, then it will be discarded simply. Okay, कोई पूछेगा नहीं आपको भाई इसमें एरर है, देखो जरा देख लो इसको, जरा करेक्ट कर लो, कोई पूछेगा नहीं.
सीधा डिस्कार्ड करेगा, बिकॉज उनको एरर पर्कुलेट करना ही नहीं है, ठीक है। So we have to make sure that whatever packet which is traveling from the source to the destination should be error free. I hope you people are getting this. बस कुछ नहीं, इसके अंदर इतना ही है. So we have to make sure that at each and every level, at each and every layer, we need to make sure that the data is error free. Okay, coming to the next one, that is flow control. फ्लो कंट्रोल के बारे में आपको पता है. फ्लो कंट्रोल एक्चुअली बेसिकली सेंडर एंड रिसीवर, also called as producer and consumer, as you know that we have done in the operating system also, that आपका जो प्रोड्यूसर है उतना ही माल प्रोड्यूस करे जितना कि आपका रिसीवर, आपका कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है. ओके, और कंज्यूमर उतना ही कंज्यूम करे जितना वो मतलब प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब दोनों का सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, योर सेंडर विल, योर प्रोड्यूसर, देखो बार बार मेरे मुंह पे सेंडर और रिसीवर आया था, but here I'm talking in terms of the producer and consumer. Okay, so producer and consumer will have to make the synchronization between them, so that correct amount of data, correct amount of packet will be produced by the producer and it will be consumed by the consumer. There should not be any kind of loss. Okay, कोई तरह का किसी तरह का लॉस हमको नहीं चाहिए. Okay, so flow control regulates the amount of data a source can send without overwhelming the receiver. इतना डेटा प्रोड्यूस करे कि जितना वो रिसीवर को ओवरलोड किए बिना सेंड कर सकता है. बस उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल. ठीक है. If the upper layer at the source computer produces data faster than the upper layer at the destination computer can consume it, the receiver will be overwhelmed with the data. ऑब्वियसली आपने 5 पैकेट पर सेकंड बना रहे और वो बेचारा जो है तो बंदा जो है 4 पैकेट पर सेकंड वो रिसीव कर पा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका? अरे लॉस हो रहा है ना भाई साहब. इसीलिए तो हम लोग को फ्लो कंट्रोल चाहिए कि दोनों के बीच में क्या हो, वी मस्ट हैव टू मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर सो दैट द फ्लो कंट्रोल विल बी. ओके, गॉट इट एनीवन? समझ में आया आप लोग को? ये तो आप लोग को ऑलरेडी पहले समझा, बट जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द service which is also provided by the network layer, because we have to maintain, we have to make sure about the flow control and for the error control also. Okay, please someone please respond me whether people are getting or not. समझ में आ रहा है आप लोग को? I need some responses. Yes, in terms sir. Of others you can also respond. जो बाकी लोग हैं वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. एटलीस्ट कम से कम सब लोग मैसेज कर सकते हैं और एक ऑडियो तो अनम्यूट करके बोल ही सकते हैं, सो दैट आई विल एटलीस्ट थोड़ा सा मैं श्योर करूँगा कि हाँ चलो आप लोगों को समझ में आ रहा है. ओके, ठीक है. उसके अलावा लास्ट वाला एक और पॉइंट था, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्लो, in order to control the flow of data, okay, your sender and your receiver दोनों के बीच में synchronization maintain करने के लिए some kind of feedbacks are also sent from sender to the receiver, sorry from receiver to the sender. okay, कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 5 पैकेट बना के दे रहा है, सेंडर 5 पैकेट्स प्रोड्यूस करके रिसीवर को दे रहा है. अब रिसीवर उसको कंज्यूम कर पा रहा है कि नहीं? फॉर एग्जांपल at that moment of time your receiver is not able to consume those 5 packets per second, then what will happen? एक पैकेट लॉस हो रहा है. तो उसके लिए क्या करें? सोल्यूशन है भाई हमारे पास में. क्या सोल्यूशन है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिसीवर टू सेंड द फीडबैक टू द सेंडर. ठीक है, एक फीडबैक भेजे, एक छोटा सा पैकेट भेजे फीडबैक का, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डाल के भेजे कि भाई देख 5 पैकेट मेरे से हजम नहीं हो रही है, मुझे खाली 4 पैकेट, मुझे खाली 3 पैकेट भेज. ठीक है, सो दैट आई कैन कंज्यूम इट एफिशिएंटली. एंड आपके जो पैकेट जो लॉस हो रहा है, तो लॉस हमेशा देखो जब भी पैकेट लॉस होंगे उसके बाद में कंजेशन होना बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कंजेशन हो, बिकॉज आपके जो पैकेट्स है वो सही से रिसीव होंगे नहीं, वो पैकेट का एक्नॉलेजमेंट जाएगा नहीं, तो फिर उसका रीसेंड करेगा फिर वापस से कंजेशन, और बीच में फिर बहुत सारे पैकेट जमा हो जाएंगे. जितना रश होगा उतने पैकेट जमा हो जाएंगे और फिर वहाँ पर कंजेशन के चांसेस बहुत हो जाएंगे. ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल हम लोग को मेंटेन करना है.
So the synchronization and the balance can be managed with the help of the feedback which is being sent by the receiver to the sender, so that it will inform the situation, the current situation. रिसीवर का काम है सेंडर को फीडबैक देके एक इन्फॉर्म करना कि भाई साहब यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि अभी मैं 5 नहीं, मैं 3 ही पैकेट हैंडल कर पा रहा हूँ, तो आप 5 नहीं, कृपया करके 3 ही पैकेट आप भेजें। ओके, हो गया फीडबैक। आपका सेंडर बोलेगा ठीक है भाई साहब, ओके, उसने 5 के बजाय 3 कर दिया, हो गया मेंटेन, फ्लो कंट्रोल हो गया मैनेज। ठीक है, अब जो है आपका हर कुछ क्या है, मतलब हर एक चीज यहाँ पर बराबर ओके होगी। I think we're done, but we'll cover this one. Congestion control. The next service is the congestion control. As you know, congestion क्या होता है बेसिकली? कंजेशन अगर आप अपनी रियल लाइफ में अगर एग्जांपल में देखेंगे तो यू हैव सीन सम काइंड ऑफ कंजेशन, यू हैव सीन सम काइंड ऑफ रश ट्रैफिक। ओके, कभी कभी मुंबई में ज़्यादा होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी कार्स है और कहीं कहीं पर सिग्नल्स के ऊपर भी कंजेशन हो जाता है। ओके, और बहुत सारी कार ट्रक वगैरह ट्रॉलर बीच में जिसमें फंस जाते हैं और वो मतलब बहुत मुश्किल होता है उनके लिए निकलना। मतलब the deadlock kind of situation is the different one, but congestion मतलब traffic, okay, जहाँ पर मतलब निकल ही नहीं सकते बस ऐसा है। So this is another issue in the network layer of obviously ये जो situation है this also it is also possible in our network also। ठीक है, हमारे network layer protocol के अंदर भी ये चीज़ possible है, हो सकती है। congestion को control करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी तरह का अगर कोई कंजेशन होता है, नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा होते हैं, समझ लो एक ये आपका सिग्नल, ये आपका वायर है। ठीक है, अब इस वायर के अंदर जितने पैकेट जा सकते हैं उतने पैकेट नहीं जाए, उससे अगर ज़्यादा पैकेट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू, आपकी क्लासरूम है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपके डोर में से कितने लोग निकल सकते हैं, 2 लोग एट अ टाइम एफिशिएंटली निकल सकते हैं, अच्छे से निकल सकते हैं। 3 लोग थोड़ा फंस के निकल जाएंगे, 4-5 लोग 8, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 75 स्टूडेंट एक साथ में निकलने की कोशिश करेंगे, क्या होगा बोलो, कंजेशन हो जाएगा। वही है कंजेशन और कुछ नहीं। ठीक है, so congestion in the network layer is a situation in which too many datagrams, okay, too many students, okay, in our case, okay, too many datagrams are present in the area of the internet। ठीक है, तो at any moment of location, at any place, at any location in the इंटरनेट और वी कैन से वायर इन द केबल एट एनी प्लेस, हमारे नेटवर्क के अंदर बस। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर टू मैनी डेटाग्राम्स आर प्रेजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो क्या हो गया, वो कंजेशन हो गया। जैसे आपके बहुत सारे 75 स्टूडेंट एक साथ में आके डोर पे जमा हो गए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। अगर एक एक करके निकलेगा तो होगा कंजेशन, नहीं होगा। और सब साथ में निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कंजेशन हो जाएगा। बस वही एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। Congestion may occur if the number of datagrams sent by the source computer is beyond the capacity of the network or router। कैपेसिटी 2 लोगों की निकलने के बाहर, एक साथ में 10-10 लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, होगा पॉसिबल नहीं, एकदम फंस जाएंगे। निकलेंगे एक एक करके निकलेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, बहुत कंजेशन हो जाएगा, ट्रैफिक हो जाएंगी और हो सकता है कोई गिर जाए, किसी का नुकसान हो जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए, किसी का कुछ हो जाए। ठीक है, तो और वैसे ही हमारा वहाँ पर भी होता है, कहाँ पर, नेटवर्क में भी होता है। नेटवर्क के अंदर आपके बहुत ज़्यादा डेटाग्राम एक जगह पर आ गए, तो उसमें से कुछ एक हाथ पैकेट लॉस हो गए, कुछ ड्रॉप हो गए, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब ऐसा होते रहेगा। ठीक है, तो कंजेशन में नुकसान होना मतलब एकदम जिसको हम लोग बोलेंगे होना ही होना है नुकसान। ठीक है, तो जैसा नुकसान हमारे यहाँ पर होता है, भले ही जान का नुकसान ना, अच्छा जान का नुकसान बहुत एक्सट्रीम केस है, जहाँ पर बोलते हैं ना कोई कहीं क्राउड है, कंसर्ट है और वहाँ पर अगर कोई अगर अफवाह र्यूमर फैला दे यहाँ पर बॉम्ब है, तो सब लोग कैसे भागेंगे, अगर कोई बीच में भी आ गया तो उसको भी उसके ऊपर से भागते हैं। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज वेरी रेयर केस। ओके, तो वो तो हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, बट वहाँ पर भी लॉस है, वहाँ पर भी जान का खतरा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी हमारे नेटवर्क के किसी लोकेशन पे अगर टू मैनी डेटाग्राम्स आर प्रेजेंट, ओके, so what can happen, some of the datagram may destroy, okay, some of the datagram may be lost। okay, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इनकी जान चलेगी, 1-2-3 डेटाग्राम आपके निकल लिया, अब उनको क्या करना पड़ेगा, रिसेंड करना पड़ेगा। ठीक है, so that kind of situation is the congestion। in this situation some routers may drop some of the datagram, बहुत सारों को तो ड्रॉप करना पड़ता है, बहुत सारे ड्रॉप हो भी जाते हैं। as more datagrams are dropped the situation may become worse। okay,
अब मालूम पड़ा जो डेटा आपके जो मतलब के डेटा ग्राम से जो पैकेट आपके ड्रॉप हुए या ड्रॉप किए गए, तो क्या हो गया फिर एक टाइम होने के बाद में उनके जो सेंडर्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, तो सेंडर क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रीसेंड इट बिकॉज वो टाइम पे नहीं पहुंचे, टाइम पे उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो देन व्हाट दे विल डू, दे विल रीसेंड द पैकेट। जब वो रीसेंड करेंगे तो वापस से ट्रैफिक और आया, मालूम पड़ा आपके 10 डेटा ग्राम एक जगह पर फंस गए, उसमें से 5 को ड्रॉप किए या 3 को ड्रॉप किया, वो तीन ड्रॉप हुए, तो उनके पेरेंट्स ने, उनके सेंडर ने वापस उनको रिसेंड किए। अब क्राउड और जम गया, बाद में फिर और पीछे से क्राउड आया, कुछ और अपकमिंग जो भी रहेंगे आपके डेटाग्राम्स वो भी आ गए, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर आपके जो कंजेशन की सिचुएशन है, इट मे बिकम द वर्स्ट। ओके, and due to this error control mechanism at the upper layer, the sender may send duplicates of the lost packet also। ठीक है, तो अगर कहीं आपका पैकेट लॉस हो गया तो उनके भी अलग से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ट्रैफिक पे ट्रैफिक, ट्रैफिक के ऊपर और ट्रैफिक, तो ऐसे ट्रैफिक से कंजेशन की सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। So if the congestion continues, sometimes the situation may reach at a point where the system collapses and no datagrams are delivered. This is the worst scenario. This is the worst situation which may occur. जहाँ पर कोई डेटाग्राम नहीं पहुंचेगा और सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो जाएंगी कि आपका जो नेटवर्क है वो एकदम डाउन हो जाएंगे, कोई नहीं जा सकता। ठीक है, तो यह होता है कंजेशन कंट्रोल, एंड फॉर दैट वी हैव टू काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम, दैट इज ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल एंड सेकंड इज क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल, दैट विल टॉक अबाउट later. We have that also. Quality of service, okay, so whatever data we have that is in kind of audio video, okay, so उसका क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब मालूम पड़ा आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बट उसमें आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो, क्या फायदे का? आपने ऑडियो प्रोवाइड किया, वीडियो प्रोवाइड किया, सब आपने ट्रांसफर करके दिया, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी डिग्रेड हो गई, क्या फायदा उसका? क्वालिटी ऑफ सर्विस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेटवर्क लेयर। तो योर नेटवर्क लेयर ऑल्सो फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा, ये एक सर्विस। एंड लास्ट वन इज द सिक्योरिटी। So this is the last issue, last service, okay, which is related with the communication at the network layer, is security. And it was a concern when the internet was originally designed, because internet के ऊपर जो आपका data जा रहा है that is important। अगर आप internet banking कर रहे हो, I'm taking more time, so kindly consider, last point है, हम लोग खत्म कर रहे हैं 1 मिनट के अंदर। if you are sending some data on internet, if you are doing some internet banking or mobile banking, then obviously आपके पैकेट जो जा रहे हैं उसके अंदर it contains important information। आप जो डेटा सेंड कर रहे हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपके पिन है, आपके पासवर्ड है, आपका यूजर नेम है, आपका अकाउंट नंबर है, यू नो बहुत सारी प्रीशियस इन्फॉर्मेशन आर देयर हिडन इन दोज पैकेट्स, ओके, एंड उनको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका पैकेट सिक्योर नहीं है तो आपने वायर शार्क के थ्रू पैकेट को कैप्चर करके आपने इजीली उनको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से यूजर नेम पासवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी साइट सिक्योर नहीं है, अगर आपके पैकेट सिक्योर नहीं है तो, ठीक है, बट अगर सिक्योर है तो बहुत अच्छी बात है। तो सिक्योरिटी कैसे मिलेंगे हम लोग को? द सिक्योरिटी इशू वाज रिजॉल्व बाय द IPsec। ठीक है, द शॉर्ट मॉड्यूल इज कॉल्ड एज IPsec, व्हिच इज नथिंग बट द IP सिक्योरिटी। ठीक है, सो IP सिक्योरिटी इज द मॉड्यूल फ्रॉम विच we get the security for all the packet which are traveling from source to the destination, that's all। okay, तो security हम लोग को IPsec से मिली है। okay, so that's all for the services of the network layer। okay, so here we are done with this one। okay, and I hope आप लोग को ये समझा होगा, सारे पॉइंट्स में से समझे होंगे। एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल, देन क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड सिक्योरिटी। ओके, सिंपल है, एक बार आप पढ़ेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। ठीक है, I will stop because I've taken more time. Sorry for that। अब